There should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation. Keeping the West Asia conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel and in ATF. So Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials, will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India, they will be made available for domestic market and ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. And on the rumors of the lockdown. I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods. There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people that there shall not be any lockdown. ये बहुत बड़ी बात है। इसको भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पे तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मूल बात यह है, I on behalf of all the MPs would like to extend heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for taking such an important decision to cut drastically the excise duty on petrol and diesel. So this is something which is taken only to ensure that the common people do not suffer. So to ensure that such a huge decision taken by the Prime Minister at the top level must be ensured by all cooperation, especially the state government, to ensure that there is no shortage of LPG, petrol, diesel at the ground level. So we all have to support. It's a time of crisis. We have to work as a team. देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं
उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हों। इसे कहते हैं हाथ की सफाई और चोरी पकड़ी गई। देखिए 2014 में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी होती थी पेट्रोल पे 9 रुपए 48 पैसे पर लीटर, और आज क्या है 32 रुपए 98 यानी 33 रुपए पर एक्साइज। डीजल पे उस समय 3.3 रुपए 56 पैसे था और इन्होंने कर दिया था 31.83, लगभग 32 रुपए। और कमाया कितना मालूम है? जनता से लूटा कितना, कमाया नहीं लूटा कितना, लगभग 28 लाख करोड़, जो बहुत से देशों का बजट नहीं होता। कोविड टैक्स जो लगाया था वो भी कम नहीं हुआ, एक कोविड के समय में लग गया, और आज कम कर रहा है। यानी लूट के 28 लाख करोड़ लूटा और दे क्या रहे हैं? थोड़ी सी रियायत, और ऊपर से बन रहे हैं कि जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पे। सिर्फ इतना हुआ है, जो डकैती डाल रहे थे ना, वो डकैती में थोड़ी कमी की है। मैं इसे इस ढंग से दर्शाता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कटौती की गई है, लेकिन प्राइसेस तो बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, और इस कटौती का क्या फायदा? जब मिल ही नहीं रहा है तो उस पर कटौती का क्या फायदा? ये सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, सिलेंडर हो, एलपीजी हो, हर चीज उपलब्ध है। नहीं, आप देखिए, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं 5-5 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 1-1 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक लाइन में लोग खड़े हैं एलपीजी के लिए और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो फिर ये इस कटौती का कोई फायदा है नहीं। कटौती का फायदा कब होता कि आप सही तरीके से लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, तो कहीं फायदा होता है। वो काट के 3 रुपए कर दिया गया है, पहले 13 रुपए थी, अब डीजल 0। किसके लिए कम किया? क्या मेरे और आपके लिए कम किया? क्या अभी मैं और आप अगर यहां से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल, हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चले हम पर एहसान लादने। और जब मई 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, जब हम चुनाव हारे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल के $106 प्रति बैरल थे, और पेट्रोल कितने में मिलता था साहब? 71 रुपए 71 पैसे में।
डीजल मिलता था 56 रुपए 71 पैसे में। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लगभग आधा मान लीजिए, लेकिन पेट्रोल आप दे रहे हैं 94-95 रुपए में ले रहे हैं। तो ये सब उसी कमाल की एक्साइज ड्यूटी है जो इन लोगों ने हम पर डाली है। और फिर हरदीप पुरी की हिम्मत देखिए, कहते हैं कि भारत की जनता को राहत देनी है, उन पर वजन न गिरे, इसलिए भारत की सरकार वजन ले रही है। भाई ये भारत की सरकार तो भारत की जनता की ही ना सरकार है, पैसा भारत की जनता का ही ना है, या एप्स्टीन का है, या एप्स्टीन के आइलैंड की सरकार है। क्या भाषा है साहब, ये राजे रजवाड़ों की भाषा लेकर आ गए हैं कौन आप? और इससे पहले जो रूस से हमें तेल मिल रहा था, डिस्काउंट पे मिल रहा था, क्या वो डिस्काउंट, क्या वो राहत उपभोक्ता को मिली? नहीं, वो अंबानी को मिली, उपभोक्ता को नहीं मिली। क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे जिस तरीके से कम किया है, कितनी राहत मानते हैं? ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत राहत है मिलेगी। और बेसिकली आज की ये जो आज लोगों को परेशानी हो रही थी थोड़ी बहुत, जो हालांकि परेशानी थी नहीं, ज्यादा जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं उनके हिसाब से था ये, पर लोगों को मानसिक रूप से ये लगेगा कि नहीं, सरकार ने हमारे बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। The government has slashed excise duties for petrol and diesel by 10 rupees, and we welcome this move, bringing down 3 rupees per litre for petrol and 0 for per litre of diesel. This reduction comes at a time when these global energy crisis, where the US-Israel war on Iran has consequently had its own imposition on the Strait of Hormuz. But we all know that Bharat has been proactive for the citizens, and pre-war India bought 12 to 15% of that oil. So the crude oil and gas supply between 20 to 25 million barrels per day has been shipped, and the government is very proactive in this respect.